Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Good morning to all of you. Myself, Manish Thakur. I am assistant professor in mechanical engineering department, and today I am going to teach you the open die forging. Right? Open die forging operations already I have covered. Right? In which we have discussed without frictions. Right? That is under ideal conditions. Right? Today we are going to discuss about the the forging operations, that is open die forging operations, by considering the frictions, right? That is the actual scenario, right? Okay. So basically, just we are trying to recapitulate whatever we have discussed in the last session, right? Okay. तो open die forging में क्या होता है? Basically, look at this here. This is the partial compressions, right? Partial compressions is what, in which there is a gap between two dies. This is the upper dies which is movable, and this is the lower die that is what, that is fixed here, right? Okay. In between these two, we are going to keep the workpiece, right here. Now, by applying the force here vertically downward, what will happen? There will be a change in the dimensions, right? As the volume is constant here, the change will be taken place as height is decreasing. The radius or diameter will be increased according to the volume consistency, right? So can we write volume 1 is equal to volume 2 at these positions? Can be right or not? Can we write, suppose this is the volume I, and this is the volume F. This is the complete compressions, right? This is the final stage, right? Okay, this is the intermediate stage, that is the partial compressions. Now we are going to have the this is the final positions, right? So can we write here volume initial that is equal to volume final, because there is no losses of volume here. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम में कोई लॉसेस नहीं हो रहा है. That is why we are going to take the volume I is equal to volume F. ठीक है, initial volume that will be equal to final volume. Am I right or not? Am I right or not? Am I right or not? Yes or no? Okay. Now how will we find the volume? Let's see आता है सब्जी. How you will find the volume here? Volume is nothing. It is equal to pi by 4 into d initial, right? This is a d initial or d naught whole square. नीलांजन है हमरा square into what? H initial, right? That is equal to pi by 4 into df square into hf. Can we write or not? This is a very useful formula. Whenever we will solve the problem, this formula will be required, right? Okay. Okay, and how the force can be calculated? Force is nothing. It is equal to sigma f, that is the flow stress into multiplied by final area, the area of the final product, right? That gives the value of force here, right? Forging forces, right? And true strain will be equal to how? Already I have discussed the true strain. That the true strain can be written as integration of dl by l, limit from L not or initial to L final, right? तो यहाँ पे क्या है? H है, ठीक है? तो यहाँ पे L के जगह पे H हम पुट करेंगे. We will get the value है ET, that is the true strain that will be equal to Ln HF dividing by H initial. Can we write or not? Can we write or not? Yes, sir. Okay, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, अभी हम यूज करने वाले, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमने क्या बताया था? ट्रू स्ट्रेन हो गया, राइट? ठीक है, चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस डायमीटर, दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू df माइनस d नॉट इनिशियल डायमीटर डिवाइडिंग बाय फाइनल डायमीटर इनटू 100, राइट? ठीक है, दैट इज द परसेंटेज चेंज इन डायमीटर.
नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, हैमर हैमर के पास कितना एनर्जी, हैमर इज हैविंग अ हाइट h, ठीक है, h हाइट के ऊपर में है। उसके बाद क्या करता है, ड्रॉप हैमर, राइट, ड्रॉप हैमर की बात करते हैं, तो इसके पास सम पोटेंशियल एनर्जी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम ड्रॉप कराएं, राइट, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो ड्रॉप होगा उसके कारण क्या होगा, ये एनर्जी यहाँ पे लॉस करेगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन, राइट, ठीक है। इस चीज को क्या करेगा, कंप्रेस करके एच नॉट हाइट से कहाँ ला देगा, एच एफ हाइट पे, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द वर्क। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, दिस एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, दैट इज द कौन सा फोर्स, फोर्जिंग फोर्स, इनटू हाउ मच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जी, यहाँ से यहाँ जो आया तो यहाँ से कितना ट्रेवल किया, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज h नॉट माइनस एच एफ, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स यू द वर्क, वर्क डन, राइट, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्लियर टू एवरीवन और नॉट, Yes, yes, sir. okay, and this process is known as fluiding. This is known as fluiding process because we are not considering the friction here, right? Okay, but in actual case, what will happen here? Okay, look at the slide here. In actual forging operations, the deformation will not be homogeneous. Homogeneous का कहने का मतलब क्या हो गया कि diameter at each and every point will be same. That is the homogeneous, right? But in actual scenario, what happened, due to the frictions between this surface, the surface contact surface between the die and workpiece, right, workpiece and die के बीच में क्या फ्रिक्शन एग्जिस्ट यदि करेगा, क्या होगा, what will happen, what will happen, already I have told you the last class। यहाँ ये देखो, ये आपका क्या वर्क पीस है, यहाँ पे ये क्या है, ऊपर में डाई है, ठीक है। तो इस सरफेस पे यदि मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट, अब आप क्या कर रहे हो, इस पे कंप्रेशन कर रहे हो, while you are going to compress the work piece, right, what will happen, work piece tends to increase the diameter। ये क्या करेगा, अपने डायमीटर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा एज हाइट इज शॉर्टनिंग, ठीक है, हाइट क्या हो रहा है, हाइट इज डिक्रीजिंग। क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्लियर टू एवरीवन और नॉट। यदि हाइट डिक्रीज कर रहा तो क्या करेगा, डायमीटर क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन दे विल अपोज द मोशन। यहाँ पे क्या मेटल का मोशन किधर है, मेटल इधर मूव कर रहा है, तो इस मोशन को क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करने का कोशिश करेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेगा, मोशंस को अपोज करने का कोशिश करेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे मिडिल पोर्शन में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, ठीक है। जब क्या करोगे आप, क्या कंसीडर करना है आपको, सर ये स्पेरिकल कैसे बनेगा लेकिन? स्फेरिकल नहीं बन रहा है, ये डोम से बन गया, ये आपका, ये जो आपका कर्व से बन गया, स्फेयर नहीं बना रहा है। ये देखो यहाँ कर्व पे लेकिन कैसे बनेगा सर? पिछले वाला में तो डायरेक्ट हो रहा था ना। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, फ्रिक्शन, अभी तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कम होगा, ये सरफेस का जो मूवमेंट कम होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होगा, सिमिलरली जो आपका जो मिडिल पोर्शन है वहां पे इसका मूवमेंट ज्यादा होगा, मेटल फ्लो ज्यादा करेगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर टू एवरीवन और नॉट, यस और नो, यस Yes, और sir. नो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, दिस इज नोन एज बर्लिंग इफेक्ट, राइट। दिस देखो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, दिस फ्रिक्शन अपोज द मूवमेंट ऑफ बिलेट एट द सरफेस, दिस इज कॉल्ड बर्लिंग इफेक्ट। व्हाट इज बर्लिंग इफेक्ट, बर्लिंग इफेक्ट इज व्हाट, इट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्रिक्शन between the die and work surface। Clear to everyone, clear or not, Yes, sir. okay, very good, ठीक है। तो
ओके ठीक है. So now what is the significance of देखो Whirling effect? Whirling effect will be significant because the diameter to height ratio of the workpiece increases. कहने का मतलब क्या होगा? Diameter to height कहने का मतलब D dividing by H. What is D? D here, this is the diameter of the workpiece and height is the height. This is the height here. ठीक है. This is the partial compression. The partial compressions में जाओगे तो ये टर्म जो है ये रेशियो है. What will happen? Ratio goes on increasing. ठीक है. डायमीटर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है और ये जो h है क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो ओवरऑल जो रेशियो होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा. राइट. द रेशियो the diameter to height ratio of the workpiece increases due to what? Due to the greater area at the बिलेट डाई इंटरफेस. ठीक है. तो बिलेट डाई इंटरफेस पे ज्यादा एरिया होने के कारण क्या हो रहा है? ये जो रेशियो है दैट इज इंक्रीजिंग हियर and that is why Berlin effect is happening here, right? Berlin effect is mainly occurs due to the frictions existing between the die and work surface. Clear to everyone or not? Is it clear or not? So how we will okay, what is that effect of temperature? जब आप cold working कर रहे हो तो उसमें भी friction लगेगा. hot working में क्या होगा? Frictional coefficient थोड़ा सा क्या आ जाए? बढ़ता है कि घटता है? Friction coefficient क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? Friction coefficient, what will happen? टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बताएगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बढ़ेगा या घटेगा? एनीवन? घटेगा सर. सर आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हाँ हेलो. सर अभी आया. अभी आया. ओके 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 ठीक है. जब हम क्या हमने कंसीडर किया था विदाउट फ्रिक्शन, राइट, अंडर आइडियल कंडीशन, हाउ द फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड? फोर्सेस कैन बी, फोर्स इज इक्वल टू फ्लो स्ट्रेस इनटू फाइनल एरिया, राइट. ठीक है. बट हियर इन द केस एक्चुअल सिनेरियो वी आर considering that we are considering the frictions, right? Friction, so that here there will be a coefficient is added here, right? Here a coefficient is to be added here, right? Okay, this is known as kf, right? Okay, this is the kf. You have to add the coefficient here. Okay, so f can be written as, in the case of friction, okay, f can be written as kf multiplied by sigma f into af. ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला. ठीक है. By considering the effect of friction and dH ratio, and how the kf can be calculated? Value of can be calculated by using these equations. ठीक है, where kf is equal to 1 plus 0.4 mu. Mu is the coefficient of friction multiplied by df dividing by hf. df क्या है? df is what? Final diameter, product of final diameter, and hf is the final height. ठीक है. By using this you can use the value of you can find the value of kf, and then similarly you can find the value of forces, right? ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ h to d रेशियो ऑन बर्लिंग इफेक्ट. ठीक है. तो h to d रेशियो यदि मान लो कि ग्रेटर देन 2 रहेगा, राइट, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी हैपन. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन, राइट. ठीक है, बाय हैमरिंग, राइट, बाय हैमरिंग और बाय फॉर्जिंग ऑपरेशन, राइट. ठीक है. सिलिंड्रिकल cylinder having h by d is less than 2, h by d is less than 2, so what will happen? There will be a Berlin effect, right? There will be a Berlin effect. ये कर्व सरफेस की तरह काम करेगा ये.
surface will be like curved, right? Okay, and friction यदि हम Sir, consider है, sir. यदि this will be एक मिनट, friction will not be considered, तो what happen? This will be through the diameter will be constant throughout, that is a homogeneous structure will be there. Clear to everyone or not? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था क्या? ये पहला वाला डायग्राम को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं जिसमें इसका नाम नहीं हल्का है, कम? नाम नहीं है इसका, ठीक है? सर लेकिन ये हो कैसे जाता है सर? मेटल तो फैलेगा ना इसमें? मेटल फैलेगा, लेकिन मेटल फैलेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैल रहा है ना, यहाँ पे फैल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से टूट जा रहा है, फिर से यहाँ पे फैल रहा है, राइट? ठीक है, तो इस टाइप का ऑब्जर्वेशंस आप कब कर पाओगे? जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब यू कैन मेक द ऑब्जर्वेशंस, राइट? क्लियर? फर्स्ट वाला का हाइट ज्यादा है और सर हाँ, डायमीटर h by d, राइट? h by d कहने का मतलब क्या होगा? दिस इज व्हाट, दिस इज द h and this is what, this is the d here, right? ठीक है, तो h by Yes, d, h by d that is equal to greater than 2 कहने का मतलब क्या हो गया? h is greater than twice of d. डायमीटर का दुगना से h क्या है? ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्टा है, h will be less than 2d. Clear to everyone? h will be less than 2d. In case of this there will be a barreling effect, right? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हमने कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो और जाएगा? फर्स्ट वाला का हाइट ज्यादा होने की वजह से बीच में ऐसा हो जाता है क्या? हाँ 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 हाँ, हाइट ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है, बकलिंग इफेक्ट, ठीक है? बकलिंग इफेक्ट विल बी देयर, राइट? ठीक है, बकलिंग फिर आप लोग पढ़े होगा ना इसमें जी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बकलिंग पढ़े ना, कॉलम का डिजाइन, ठीक है? नो सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग पढ़े हो? सर पूरा कहाँ पढ़े थे, कुछ कुछ सब चैप्टर पढ़े थे। हाँ, तो उसमें देखना, उसमें एक आता है कॉलम का डिजाइन, उसमें बकलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी बकलिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, देयर इज अ क्वेश्चन, होप यू हैव द कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर, यस और नो? यस सर। ठीक है, आप लोग निकालिए कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर, निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, प्लीज look at the questions here. In open die forging, a disc of diameter 200 mm and height कितना है? 60 mm is compressed without any burling effect, right? Burling effect कहने का मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे? Frictions, that is frictions is equal to 0, right? Frictions को हम क्या कर रहे हैं? Consider नहीं कर रहे हैं। Clear to everyone? Yes or no? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? चलिए गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा वी आर गोइंग टू सॉल्व, राइट? हाउ इट यू विल सॉल्व? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द फिगर, ठीक है? क्लियर होने के लिए क्या करो? फिगर बनाओ, राइट? ठीक है, तो ये क्या बनाना है? हमने सिलेंडर बनाना है। एक सिलेंडर का क्या है मेरे पास? इनिशियल पोजीशंस पे कितना है? डायमीटर कितना है? 200 mm है, एंड हाइट कितना है? 60 mm है, राइट? ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? हमें नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, लेकिन डायमीटर कितना हो जाता है? डायमीटर 400 हो जाता है, राइट? डायमीटर कितना हो जाता है जी? 400 मीटर हो जाता है, ठीक है? फिगर आप लोग ठीक से बनाओगे। डायमीटर यहाँ पे 400 mm हो जाता है, ऑल डायमेंशंस इन mm, राइट? दिस इज द initial conditions and this is the final conditions, right? What will be the height? Suppose height is h f, yes or no? h 30 mm होगा। h 30 mm, यस सर। गेस नहीं करना है इतना। यस सर। कैलकुलेट करे? कैलकुलेट किए? यस सर, मतलब दोनों को इक्वेट कर देंगे ना सर, d1 h1 इज इक्वल टू df hf। कैसे करोगे? नहीं 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 नहीं, अभी हमने क्या बताया था? गिवन डाटा मेरे पास दिया हुआ है, जो हम फिगर में लिख रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? म्यू इज इक्वल टू 0, दैट इज फ्रिक्शन इज 0, दैट इज यहाँ पे लिख रहा है बर्लिंग इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। बर्लिंग इफेक्ट, ठीक है, बर्लिंग इफेक्ट इज विदाउट बर्लिंग इफेक्ट, राइट? फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, राइट? ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमने बताया था ना, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, राइट?
तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी आई स्क्वायर इंटू एच आई हो जाएगा ना, इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी एफ स्क्वायर इंटू एच एफ। ठीक है, मेरे साथ आप लोग खुद से बनाइएगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप आंसर बताओ कितना आया। ठीक है, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया भैया, तो मेरे पास डी आई का वैल्यू कितना बताओ जी, 60 है ना, सॉरी डी आई सॉरी 200 है ना, 200 का स्क्वायर इंटू एच आई का वैल्यू कितना है 60 इज इक्वल टू डी एफ का वैल्यू कितना है 400 स्क्वायर इंटू एच एफ, राइट। नाउ एच एफ इज इक्वल टू हाउ मच, एच एफ इज इक्वल टू 200 स्क्वायर इंटू 60 डिवाइडिंग बाय 400 square. Please tell me how much the value will be HF. HF will be equal to how much? सबके पास कैलकुलेटर है ना? हेलो, Yes, sir. 15 mm, कितना है बताओ? 15 mm. 15 mm. Very good. Okay. What we have to calculate here? क्या कैलकुलेट करना है? Value of true strain, right? True strain is to be calculated here. ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है? क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? गेट 2007। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल आप यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू क्या हमने बताया था एल एन, क्या बताया था एल एन एच एफ बाई एच नॉट। क्लियर, तो अभी बताओ एल एन एच नॉट एच एफ बाई एच नॉट कितना हो जाएगा बताओ जी, एल एन एच एफ कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया, और डिवाइडिंग बाई यहाँ पे कितना 60 है। हाउ मच द वैल्यू विल बी एप्सिलॉन एलन, प्लीज टेल मी, किसके किसके पास कैलकुलेटर है जी? सर ln4 आया तो ln4 का वैल्यू 0.60 दिखा रहा है। एलन 4 Ln 1/4 होगा ना? 1/4 आएगा। विश्वजीत महतो कितना है तुम्हारा वैल्यू जी? सर H0/HF होता है ना ट्रू स्ट्रेन, ln H0/HF। देखो वहां पे माइनस को हटा देने के बाद हमने किया था, ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत करो, जस्ट सिंपल आप क्या करो कि डी एल वाई एल एच नॉट कहाँ इनिशियल क्या था एच आई एंड एच फाइनल, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एल एन एच एफ बाई एच आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना है जी वैल्यू बताओ, जल्दी से वैल्यू बताओ। किसी को लॉग नहीं आता निकालना जी, कैलकुलेटर यूज करो। रवि कुमार सर log 1/4 का वैल्यू हाँ -6.0 आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है। माइनस कितना आया 0.602। नो 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 log 1/4 नफीजा सर मेरा माइनस नहीं आ रहा है, -1.38 रहा है सर ओके माइनस देखो आंसर नफीजा का 0.6 कितना है नफीजा बोलो1.386 -1.386 this will be the correct answer, right? -1.386 will be the correct answer. And what will be the value of sorry what will be the unit here? क्या यूनिट होगा जी? What will be the unit? Please tell me. सर यूनिट कैसे होगा, यूनिट से यूनिट तो कट जाएगा शायद ना।
हाँ तो यही तो पूछ रहा है कि यूनिट क्या होगा। अच्छा रवि के अलावा और कोई तुम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो क्या जी? रवि और नफीसा के अलावा तुम लोग किस लिए क्लास में आ रहे हो जी? अब मार्क कर रहे हैं किसको मार्क्स देना है, ठीक है। तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और मुझे भी, मेरा भी टाइम किल कर रहे हो, ठीक है। कोई फायदा नहीं है ऐसे क्लास अटेंड करने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आंसर सबका आ जाना चाहिए, राइट रवि? होप यू हैव गोट द कैलकुलेटर आंसर। में -0.60 दिखा रहा है। नहीं देखो लॉग यहाँ पे 15/60। लॉग नहीं, लॉग अलग होता है, लॉग अलग होता है और एलएन अलग होता है, ध्यान देना। लॉग का बेस 10 होता है और एलएन का बेस ई होता है, याद है ना? ठीक है। एक और मेथड हमने बताया था, एक और मेथड क्या बताया था, देखो ध्यान से देखना कि यदि मान लो कि ये ट्रू स्ट्रेन की बात किया, अब इंजीनियरिंग स्ट्रेन की हम बात करते हैं। सपोज इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो कितना हो जाता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा एल डिवाइडिंग बाय एल, इज इट राइट? डेल्टा एल डिवाइडिंग बाय एल, दैट इज द एल ओरिजिनल इनिशियल लेंथ। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से? डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू एल आई माइनस एल एफ, राइट? कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 60 माइनस 15 डिवाइडिंग बाई कितना हो जाएगा? एल आई या एच आई, ठीक है। तो यहाँ पे एच आई है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 15 बटा कितना हो जाएगा? 45/60। तो कितना लिख सकते हैं? 3/3/4 0.75 लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखो, कंफ्यूजन हुआ तो बताओगे। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। हेलो, लास्ट वाला ये नहीं आया सर समझ में। क्या नहीं है? आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल, तो दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन विल बी हाउ मच? 0.75। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन में क्या रिलेशन था? ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अरे भाई, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, याद आया? फॉर्मूला लिखा था मैंने ना। तो एल एन कितना हो जाएगा? अच्छा ये डेल्टा एल जो था आपका, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले 15 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो दिस विल बी हाउ मच? -0.75, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस यहाँ प्लस का जगह पे इसका वैल्यू बैठाएंगे तो -0.75, राइट? That will be equal to how much? ln 0.25, right? तो ln 0.25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना, ln 1/4 1/4, ठीक है। तो वैल्यू विल बी सेम हियर। एप्सिलॉन टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन टी मतलब ट्रू स्ट्रेंथ, दैट विल बी इक्वल टू 1.386, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो दोनों तरीका से हमने बताया, दोनों तरीका में क्या आया? सेम वैल्यू, सेम आया, राइट? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है क्या? ई एल जो लिखे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तो बता रहे हैं ना। सर। ये फर्स्ट वाला मेथड फिर से बता दीजिए सर, इसी में कंफ्यूजन। फर्स्ट में क्या है तुम्हारा? जस्ट फार्मूला है, जस्ट तो फार्मूला है, इसमें कुछ करना है नहीं। नहीं, दोनों को इक्वल कैसे किए थे विदाउट? किस चीज को इक्वल कर रहा हूं मैं? VC और V F B I और B है। अरे वॉल्यूम कंसिस्टेंसी, अरे तुम वॉल्यूम जो है इसके पास क्या है? ये वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या है जी? फाइनल वॉल्यूम है ना जी। दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। वॉल्यूम हम रिमूव तो नहीं कर रहे उसके पास मेटल, उसके वहां से मेटल तो हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक है। तो वॉल्यूम तो इनिशियल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? ठीक है, कौन पहले बनाता है देखता हूं मैं, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन, the questions what is given here, please tell me a solid cylinder of diameter 100 mm and height कितना दिया हुआ है? 50 mm is forced
बिटवीन टू फ्रिक्शनलेस फ्लैट प्लेट, यहाँ पे फिर से लिख दिया फ्रिक्शनलेस मतलब म्यू इज इक्वल टू 0, फ्लैट डाइज टू ए हाइट ऑफ 25 mm, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विल बी हाउ मच, इट इज हैज बीन आस्क्ड इन द गेट 2012, ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट, ठीक है। तो पहला क्या था मेरे पास, पहला था दिस इज द हाइट हियर, इनिशियल, देखो इनिशियल ये था आपका, दिस इज द इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बिलेट और वर्क पीस, ठीक है। इसका कितना है, डायमीटर 100 है और हाइट कितना है मेरे पास 50 है, राइट। अब क्या हो जाता है कि हाइट कितना हो गया जी बताओ, हाइट हो गया, तुमका कुछ रिप्लाई नहीं करता ना, मजा नहीं आता है पढ़ाने में। 25 mm से 25 mm हाइट। तो अब क्या होगा, डायमीटर क्या निकालोगे, डायमीटर निकाल लो। डायमीटर क्या होगा, फिर से क्या करेंगे, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, π/4 तो कट जा रहा था, तो DI स्क्वायर इज इनटू HI इज इक्वल टू DF स्क्वायर इनटू HF, ठीक है। यहाँ से किसी को डाउट है तो बताओ। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, DF का वैल्यू निकालना है, राइट, DF का वैल्यू निकालना है। तो DI स्क्वायर कितना है जी बताओ, DI स्क्वायर कितना है, DI स्क्वायर कितना है बताओ जल्दी से, 100, वेरी गुड, इसका 100 का स्क्वायर इनटू HI कितना है, HI इज हाउ मच, HI इज 50, तो DF निकालना है, DF स्क्वायर इनटू HF का वैल्यू कितना है, HF का वैल्यू कितना है 25. 25, very good. Please tell me the value of DF. DF is equal to कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर, सॉरी 50 स्क्वायर नहीं, डिवाइडिंग में कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है। तो 25 को काटोगे तो 25 दूना 50, 200 आ रहा है 200 आ रहा है DF, रूट 2 इंटू 100, 200 कैसे आ रूट जाएगा, 400 रूट 400 बराबर 200 हो जाएगा। 25 रूट 400 कैसे आ जाएगा, देखो चेक करो। नो सर, 141 मतलब 141.421 DF है। ओके वेरी गुड, कितना आया, D इज इक्वल टू 100 141.421, राइट, ठीक है। दिस इज द DF, राइट, DF, राइट। You have to calculate the percentage change in diameter, percentage change in diameter, right. What will be the value here, DF minus D initial dividing by DF into 100. Please tell me the value, please tell me the value. बी में रहा होगा 41. कितना आ गया सर 293 पॉइंट, ये तो आपका परसेंटेज में आएगा ना। देखो DF कितना आ गया 141 था ना, 141.421 माइनस DI कितना था, इनिशियल डायमीटर कितना था 100, सॉरी 100 डिवाइडिंग में कितना था, सॉरी ये इनिशियल डायमीटर होगा, यहाँ पे फाइनल नहीं होगा, यहाँ पे तो इनिशियल डायमीटर होगा ना, ठीक है। तो इनिशियल डायमीटर कितना हो जाएगा 100, प्लीज टेल मी द वैल्यू इनटू 100, 100 से 100 कट गया, हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी से बताओ, 40, फॉर्मूला में तो नीचे में डायमीटर ही ना है सर, 41.4% आंसर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है क्या, सर ये फॉर्मूला में DF माइनस DI बाय DF है ना इनटू 100। ना DI होगा, DI होगा, गलत होगा, इनिशियल डायमीटर ही होगा ना, चेंज निकाल रहे हो आप, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो सर। Yes, sir. yes ओके, sir, वेरी clear. गुड, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी है और ये गेट 1992 में पूछा गया है और अगेन रिपीटेड इन द इसरो का एग्जाम में पूछा गया है 2012 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रू स्ट्रेन वैल्यू निकालना है ऑफ लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल इन लेंथ बाय फोर्जिंग। ठीक है, उसका लेंथ को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। इनिशियल लेंथ कितना है, इनिशियल लेंथ या आई इज इक्वल टू कितना, एल है, एंड फाइनल लेंथ कितना है, एल एफ इज इक्वल टू कितना है, 2l है, 2L. राइट। एप्सिलॉन टी निकालना है तो एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन एल एफ बाई एल इनिशियल, राइट। तो यहाँ पे एल एन 2l बाई एल। ठीक है, तो एल से एल कट गया, एल एन टू का वैल्यू कितना होता है जी, 0.693, which will be the correct choice? Option C. option C will be the correct choice, right? Next will be the homework. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, टेक द स्क्रीनशॉट। Have you taken or not? Yes, This sir. will be the